द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम इज द पावर टू चूज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है ये। एवरी ह्यूमन लाइक फ्रीडम। हर इंसान को फ्रीडम पसंद है, और जो फाउंडेशन है फ्रीडम का वो है पावर टू चूज़। अगर आपके पास चॉइस की पावर है तो इट मीन्स यू आर एक्चुअली फ्री। इसका ये भी मतलब है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी हमारे पास एक चॉइस होती है, जो कि इनकी एडिथ ईगर की इस बुक का क्रक्स है, कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हमारे पास एक चॉइस होती है, और वही फ्रीडम है। आप क्या चूज़ करते हैं। इन द फाइनल मंथ्स ऑफ द वॉर I had very few options and no way to escape. Hungarian Jews had been among the last in Europe to be deported to death camps. And after 8 months in Auschwitz, just before the Russian army defeated Germany, my sister and I and 100 other prisoners were evacuated from Auschwitz and marched from Poland through Germany to Austria. We performed slave labor in factories along the way and rode on top of trains transporting German ammunition. Our bodies used as human shields to protect the cargo from British bombs. The British bombed the trains anyway. And rode on top of trains transporting German ammunition. Our bodies used as human shields to protect the cargo from British bombs. To Germany to Austria. My sister and I and 100 other prisoners were evacuated from Auschwitz and marched from Poland through Germany to Austria. We performed slave labor in factories along the way and rode on top of trains transporting German ammunition. Our bodies used as human shields to protect the cargo from British bombs. The British bombed the trains anyway. इसका मतलब कि she was in Auschwitz, लेकिन लास्ट के कुछ महीनों में जब war was about to end, लास्ट के कुछ महीनों में इनको और जितने भी फेलो प्रिजनर्स थे उनको शिफ्ट कर लिया गया। जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रिया, जर्मनी के थ्रू ऑस्ट्रिया लेकर गए, और वहाँ पे मार्च फ्रॉम पोलैंड थ्रू जर्मनी टू ऑस्ट्रिया। मतलब पोलैंड से जर्मनी और जर्मनी से ऑस्ट्रिया लेकर गए, और ऑस्ट्रिया में क्या हुआ कि वहाँ पे उनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाने लगा। एज अ ह्यूमन शील्ड यूज़ किया गया, इनको यूज़ किया गया कि ये स्लेव लेबर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, we perform slave labor in factories along the way. ठीक है, our bodies used as human shields to protect the cargo from British bombs. The British bombed the trains anyway. When my sister and I were liberated at Gunskirchen, a concentration camp in Austria, in May 1945, a little over a year after we had been taken prisoner, my parents and almost all the people I knew were dead. तो ये उसके बाद का है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप से निकलने के बाद व्हाट वाज द सिचुएशन शी वेंट थ्रू, और व्हाट इज़ हर अंडरस्टैंडिंग कि उस वक्त उनको किस चीज़ ने हेल्प करी, वो थी फ्रीडम टू चूज़। कभी भी बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में भी एक चॉइस होती है कि व्हाट कैन बी डन। तो वो जो चॉइस है उसको चूज़ करने की पावर, एक होता है कि सरेंडर कर देना कि बस हाँ ये ऐसे ही है, ऐसे ही कर सकते हैं, बट उस ऐसे ही कर देने में भी अपने पास एक पावर होती है, सरेंडर कर देने की पावर या फिर अलग डायरेक्शन में एक्शन लेने की पावर। वो जो पावर होती है उन दोनों में चूज़ करने की, वो ही फ्रीडम है, वो ही फ्री विल है। ये एडिथ ईगर बताती है। My back had broken from constant physical abuse. I was starving, covered in sores, and could barely move from where I lay in a pile of corpses.
People who had been sick and starving like me, whose bodies had given up. I couldn't undo what had been done to me. I couldn't control how many people the Nazis had shoved into the cattle cars or crematoria, trying to exterminate as many Jews and undesirables as they could before the end of the war. I couldn't alter the systematic dehumanization or slaughter of the over 6 million innocents who died in the camps. All I could do was decide how to respond to terror and hopelessness. Somehow I found it within myself to choose hope. तो ये वही बोलती हैं कि सिचुएशन उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट थी. उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट थी. पता नहीं था क्या कर सकते हैं. हेल्पलेसनेस ज़्यादा थी हर एक चीज़ में. वो कहती हैं कि जो सिस्टमेटिक डीह्यूमनाइजेशन या स्लॉटर हुआ था 6 मिलियन इनोसेंट्स का, जो कि कैंप में डाइड हुए, आई कांट डू एनीथिंग. All I could do was decide how to respond to terror and hopelessness. Somehow, I found it within myself to choose hope. But surviving Auschwitz was only the first leg of my journey to freedom. Obviously, यहाँ तक समझने और पढ़ने के बाद मुझे भी एक एक्साइटमेंट हुई कि मैं जानूँ कि अच्छा आगे क्या हुआ. मतलब जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से निकली होंगी तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल शी मस्ट हैव बीन वेरी मच ट्रॉमाटाइज्ड, बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड होंगी. फिर आगे क्या हुआ, आगे किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया, क्या समझा, क्या सिचुएशंस आई उस वक्त. तो ये सारी चीज़ें भी मन है समझने का कि क्या हुआ होगा उस वक्त. और देखते हैं आगे कि इसमें हुआ क्या, मतलब उनकी लाइफ कैसे अनफोल्ड हुई, हाउ शी स्टेड विद द ट्रॉमा, कैसे उन्हें शी बिकेम सो लिबरेटेड इन एस्पेक्ट कि उन्होंने ह्यूमैनिटी में जो सबसे बड़ा एक मैसेकर माना जाता है, जो जो मास स्लॉटरिंग हुई थी, जो बहुत पेनफुल था, जिसमें इनकी लिटरली इनकी फैमिली चली गई. उन्होंने इतनी पावर कैसे आई कि शी फॉरगेव दैट हिटलर, या फिर हाउ शी बिकेम लिबरेटेड इन दैट सेंस. तो ये जानने का मन है. तो ये चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होंगी, लेट्स सी. बट सर्वाइविंग ऑस्ट्रिच वॉज ओनली द फर्स्ट लेग ऑफ माई जर्नी टू फ्रीडम. ये तो है, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद आगे कितनी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं. फॉर मैनी डिकेड्स आई रिमेन्ड अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट. बिल्कुल, ये तो पता ही है, और ये हम सब लोगों के साथ भी होता है कि दिस इज़, यू कैन से दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रॉमा, कि ट्रॉमा अपना एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है ह्यूमन बॉडी पे इनफैक्ट एनिमल्स के साथ भी होता है, बॉडी पे और माइंड पे भी, साइकोलॉजिकली भी एक इम्प्रिंट रह जाता है. और जो एक इम्प्रेशन रह जाता है उसी को हम ट्रॉमा कहते हैं. On the surface, I was doing well, putting my trauma behind me and moving on. I married Bella, the son of a prominent family in Prešov, who had been a partisan during the war, fighting the Nazis in the mountain forest of Slovakia. I became a mother, fled the communists in Europe, immigrated to America, lived on pennies, rose out of poverty, and in my 40s went to college. Nice. So after that, बहुत शॉर्ट में बहुत क्रिस्प तरीके से उन्होंने बताया है कि ऑल्दो आई केम आउट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कैम्प, बट वो बहुत समय तक मैं उसकी प्रिजनर, अपने माइंड में आई वॉज द प्रिजनर ऑफ द पास्ट. बट वो बताती हैं कि कैसे इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ हाउ शी वॉज मूविंग अहेड, हाउ शी वॉज मूविंग फॉरवर्ड. जैसे शी गॉट मैरिड टू अ मैन नेम बेला. उसके बाद शी बिकेम अ मदर. उसके बाद शी इमिग्रेटेड टू अमेरिका. शी वॉज इनिशियली शी वॉज पुअर, बट हाउ शी gained money, how she became better, how she flourished. And in her 40s, just imagine, in her 40s she went to college and became
a high school teacher and then returned to school for a master's in educational psychology and a doctorate in clinical psychology. Nice. So after that, in her 40s, she did her master's, she did her PhD later on. In her 50s, even late in my graduate training, committed to helping others heal and trusted with some of the toughest cases during my clinical rotations, I was still in hiding, running from the past, denying my grief and trauma, minimizing and pretending, trying to please others and do things perfectly, blaming Bella for my chronic resentment and disappointment, chasing after achievement as though it could make up for all I'd lost. ठीक है, तो ये बताती हैं कि as she has mentioned that she became prisoner of the past, कितने लंबे समय तक। तो उसी के रेफरेंस में आगे बताती हैं कि मैं गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी जो बुक है द गिफ्ट, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंडेबल और बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई किताब है। तो एज सच कि अगर इफ़ यू नो इंग्लिश तो आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हम साथ में शेयर कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से भी, या फिर मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं एक एक फैक्ट को इनकी आप तक पहुंचाऊं। मेरा पर्पज़ ये है कि इस किताब के एसेंस को आप तक पहुंचाने का। तो उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं। उन्होंने ये बताया कि कैसे मैंने 50s में आकर अपनी डॉक्टरेट भी पाई, लेकिन मुझे बहुत टफेस्ट केसेस के लिए, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे, उस पर भी मुझे बहुत ट्रस्ट किया जाता था। बट इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि आई वॉज एन इम्पोस्टर, कहीं ना कहीं आई वॉज हाइडिंग बिहाइंड माई ग्रीफ, बिहाइंड माई ट्रॉमाज। मतलब मैं अभी पूरी तरह से उसको फेस नहीं कर पाई थी। और कहीं ना कहीं जैसा हर एक रिलेशनशिप में होता है, किसी भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में, लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा रिलेशनशिप मेरी पढ़ाई के साथ, मेरी एजुकेशन के साथ टॉक्सिक है या फिर अलाइंड नहीं है, तो क्या होगा? मैं बार बार ये बोलूँगी, बजाय ये सोचने के कि मेरा उस चीज़ के साथ कैसा एक बॉन्ड रहा है, मैं बार बार ये सोचूंगी कि कैसे सामने वाली जो चीज़ है, जिसके कांटेक्ट में होने से एक रिलेशनशिप बिल्ड है, जैसे किताब या फिर मेरा सिलेबस या फिर मेरे नोट्स, तो वो टॉपिक टफ है इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, वो सब्जेक्ट बोरिंग है इसलिए मुझे मज़ा नहीं आता है। बजाय ये सोचने के कि मेरा अप्रोच क्या गलत है, क्यों मैं उसको किस अप्रोच से देख रही हूँ जिसकी वजह से वो मुझे बोरिंग लग रहा है, मैं किस अप्रोच, क्योंकि कोई और कहीं ना कहीं है जो सेम चीज़ों को जो इंटरेस्टिंग पा रहा होगा। तो कैसे मैं देख रही हूँ कि मुझे वो चीज़ बोरिंग लग रही है, कैसे मैं रिलेट कर रही हूँ, क्या मैं सिर्फ उसको समझने के लिए पढ़ रही हूँ या फिर उससे मार्क्स लेने के लिए पढ़ रही हूँ। तो क्या मैं मार्क्स लेने के लिए पढ़ रही हूँ इसलिए वो समझना मेरे लिए बोरिंग है। तो हर चीज़ जो है, जैसा कि कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि हर चीज़ लाइफ में हम रिलेशनशिप्स में ही जानते हैं। हमारा रिलेशनशिप फूड के साथ, हम दुनिया को रिलेशनशिप में ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसा इन्होंने भी बताया और जैसा मोस्टली केसेस में होता है कि इंसान अपने जो सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को, अपने पेन को, अपने ग्रीफ को, अपने ट्रॉमा को उस पर प्रोजेक्ट कर देता है, क्योंकि अगेन वो अपनी साइकोलॉजी को और अपने अप्रोच को टेस्ट नहीं करता है, सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर देता है उसके बिहेवियर, बिकॉज वो उसका बिहेवियर वॉज द रीज़न आई एम लाइक दिस, आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई एम डूइंग लाइक दिस। नो, you are, your thinking, your approach is the reason you are behaving like this, you are doing like this, you are being like this। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि मेरा जो एक क्रॉनिक रिसेंटमेंट और एक डिसअपॉइंटमेंट था, उसकी वजह से आई वॉज ब्लेमिंग माई पार्टनर, अचीवमेंट्स के ऊपर पीछे भाग रही थी और ये सोच रही थी कि मैं उन सारी चीज़ों के लिए मेकअप कर सकती हूँ जो कि मैंने खोया है, जो कि मैंने लॉस्ट किया है।
तो ऑब्वियसली अगर इनकी सिचुएशन को देखा जाए तो बहुत बहुत ही पावरफुल स्टोरी है इनकी, बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। किसी की लाइफ में अगर एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना, वो उसकी लाइफ को बदल सकता है। और यहाँ पे तो शी हैड गॉन थ्रू अ मैसिव अनसेटलिंग एपिसोड्स। तो अनडिनाइबली तो एक पहला अगर इनका एपिसोड देखो तो जिस दिन ये कंसंट्रेशन कैंप में ऑस्ट्रिच में जाती हैं उसी दिन उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। मतलब उनके पेरेंट्स को गैस चेम्बर में लेके जाते हैं। तब तक शी मस्ट नॉट हैव नोन कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, वो मर गए हैं, वो कहाँ गए हैं। वो एक अनसर्टेनिटी, उसका एक ट्रॉमा, वो एक डर, वो एक गिल्ट, एक जो सर्वाइवर का गिल्ट होता है। मतलब सर्वाइवर का गिल्ट मतलब ये कि आप बच गए, आपके साथ वाले मर गए, तो आपको ये लगता है कि आप क्यों बच गए, क्या आपने कुछ गलत किया उनके साथ जो मर गए और आप बच गए। आप जी रहे हो, क्या ये गलत बात है, क्या ये सही नहीं है फॉर देम जो मर गए, जो साथ में थे। क्या आप उनसे सच में इनफ प्यार करते थे कि आपने कुछ किया नहीं, क्या आपके एफर्ट में कमी थी कि वो बंदा मर गया। तो ये अलग तरीके के गिल्ट होते हैं जिसमें इंसान मेन जो उसका टारगेट होता है वो अपना सेल्फ होता है कि आई एम द रीज़न सामने वाले के साथ ऐसा हुआ। ये गिल्ट भी रहा होगा, प्लस वो इतना डिवास्टेटिंग रहा होगा जहाँ पे एक मास क्लेंजिंग, एक मास डिह्यूमनाइजेशन या मास किलिंग हो रही है एक एथनिसिटी की क्लेंजिंग के नाम पे। तो एक क्लेंजिंग के नाम पे तो आप उस एथनिसिटी और उस रेस से आते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक शेम दैट यू बिलोंग टू। अभी सोचना, अभी हम सोच सकते हैं ऐसे कि शायद ये कितनी गलत बात है, क्योंकि हम इवॉल्व हो चुके हैं एज अ सिविलाइजेशन भी हम इवॉल्व हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त अगर कोई इंसान ग्लोबली ये बात बोल रहा हो, उस बात में बिलीव कर रहा हो और सारे लोग उस चीज़ों पे एक्ट कर रहा हो और हर जगह एक ऐसा माहौल हो, तो यू कैन इमेजिन कि उस जगह पे वो इवन कल्चर जो होता है वो एरिया स्पेसिफिक भी होता है। ज्योग्राफी में वो एक छोटी सी जगह का भी अपना एक यूनिक कल्चर हो सकता है, शायद वो अगर वो एरिया 2 किलोमीटर की रेडियस में भी हो क्यों ना हो। तो ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आपके रिलीजन को ही क्वेश्चन किया जाता हो, आप और रिलीजन आपकी आइडेंटिटी हो जाती है, आपकी वे ऑफ लाइफ बन जाती है, उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा हो, तो वो कितना ज़्यादा उनके लिए अनसेट, मतलब कितना होल्ड बैक करने वाला इवेंट होगा वो। सच में वो शी मस्ट हैव अ लॉट ऑफ स्टफ इन हर टू एड्रेस। तो इनका ये बोलना गलत नहीं है और इट्स वेरी कमेंडेबल ऑफ हर ऑनेस्टी कि उन्होंने अपनी किताब में बहुत पूरी तरीके से मेंशन किया है। एक हिंट भी दिया है कि उस वक्त वो कैसी रही होंगी। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रही होंगी क्योंकि उनको चीज़ें अचीव करनी थी। उस वक्त वो उनका रिलेशनशिप उनके हस्बैंड के साथ उतना अच्छा नहीं रहा होगा, बहुत हद तक डिसफंक्शनल रहा होगा, या फिर बहुत हो सकता है टॉक्सिक रहा हो, या फिर ऑब्वियसली अगर आप अपने रिसेंटमेंट, अपने गिल्ट, अपने इमोशंस, अपने बैड इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को अगर आप सामने वाले पे प्रोजेक्ट करोगे तो यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग गुड इन रिटर्न। तो वो एक गिव एंड टेक का प्रोसेस ही टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये हमें पता चलता है कि उस वक्त उनकी क्या मनोस्थिति थी, वो कैसे देख रही थी चीज़ों को, क्या फील कर रही थी, और वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना सच भी बताया है कि क्या क्या चीज़ें थी जिसको मैं डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रही थी। और मैं सच बोलूँ तो ये चीज़ें हम लोगों के साथ भी होती है, हम सबके साथ होती है कि हम चीज़ों की ब्रांचेस को, सिम्टम्स को डील करते हैं, कोर तक क्वेश्चन नहीं करते हैं कभी। तो लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ का आंसर पाने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्वेश्चन करना होता है। इस वीडियो को मैं इसी पॉइंट पे एंड करना चाहूँगी कि कभी भी कोई चीज़ अगर लाइफ में समझ में ना आए या फिर स्टक महसूस हो, क्योंकि हमेशा वो होता है कि एक पॉइंट पे आप आते हो, उसके बाद आपको प्लेट्यू लगता है, आपको स्टक लगता है साइकोलॉजिकली। अपने आप को क्वेश्चन करो, हैव दैट करेज टू आस्क योरसेल्फ, बिकॉज दुनिया से पूछने में इट्स ईजी, बट खुद से क्वेश्चन करना
it requires enormous courage. So this is my parting words for you all in this video. I hope आपको कुछ समझ आया हो, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो पहुँचा हो, और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ का आंसर मिला हो. थैंक यू.